আৰএছএছৰ সংঘাত তুংগত উঠিছে। বিজেপিৰ অহংকাৰৰ বাবে এবাৰ একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা চুব নোৱাৰিলে বুলি আৰএছএছৰ নেতাই মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে যেহেতু বিজেপিক অহংকাৰী আখ্যা দিছিল আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰ অহংকাৰী আখ্যা দিয়া হ'ল বিজেপিক আৰু অহংকাৰৰ বাবে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা বিজেপিয়ে চুব নোৱাৰিলে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। আমি লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ। এবাৰ যেহেতু বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2014ৰ পাছত একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ নকৰিলে আৰু আৰএছএছ বিজেপিৰ সংঘাত তুংগত উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰ বিজেপিক অহংকাৰী আখ্যা দিছে আৰএছএছ নেতাই। মোহন ভাগৱতৰ পিছত আন এগৰাকী আৰএছএছ নেতাই বিজেপিক অহংকাৰী আখ্যা দিছে আৰু অহংকাৰৰ বাবে মেজৰিটি নাপালে বিজেপিৰ অহংকাৰৰ বাবে বিজেপিক শক্তিহীন কৰিলে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই। মোহন ভাগৱতৰ পাছত এইবাৰ আৰএছএছৰ আন এজন শীৰ্ষ নেতাই মোদী চৰকাৰক অহংকাৰী আখ্যা দিছে আৰু অহংকাৰৰ বাবে আসন হ্ৰাস পোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে আৰএছএছৰ বিজেপিৰ সংঘাত তুংগত উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুনৰ বিজেপিক অহংকাৰী আখ্যা দিছে আৰএছএছে। অহংকাৰৰ বাবেই হেনো এইবাৰ বিজেপিয়ে 272খন আসন নাপালে। এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আছে, প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ পিছত এইবাৰ শীৰ্ষ আৰএছএছ নেতা ইদ্ৰিছ কুমাৰ। বিজেপি অহংকাৰী হ'ল, যাৰ বাবে 241তেই ৰৈ গ'ল বিজেপিয়ে এইবাৰ যিমান শক্তি পাব লাগিছিল সিমান শক্তি লাভ নকৰিলে। এয়া হেনো প্ৰভু ৰামৰ ন্যায়। অহংকাৰীক 241ত ৰখাই দিলে প্ৰভুৱে আৰু ৰাম বিৰোধীক দিলে 234 মাত্ৰ। আৰএছএছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ পোনপটীয়া আক্ৰমণ বিজেপি চৰকাৰক। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। ইয়াৰ পূৰ্বে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতেও অহংকাৰী আখ্যা দিছিল বিজেপিক। ইদ্ৰিছ কুমাৰৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া দেশত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ আহিছে। মোদীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰএছএছক, গতিকে আমি আৰএছএছৰ কথাত কিয় গুৰুত্ব দিম? कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। नेशनल ब्यूरो एनबी न्यूज। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ পিছত এইবাৰ শীৰ্ষ আৰএছএছ নেতা ইদ্ৰিছ কুমাৰ। বিজেপি অহংকাৰী হ'ল, যাৰ বাবে 241তেই ৰৈ গ'ল বিজেপিয়ে এইবাৰ যিমান শক্তি পাব লাগিছিল সিমান শক্তি লাভ নকৰিলে। এয়া হেনো প্ৰভু ৰামৰ ন্যায়। অহংকাৰীক 241ত ৰখাই দিলে প্ৰভুৱে আৰু ৰাম বিৰোধীক দিলে 234 মাত্ৰ। আৰএছএছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ পোনপটীয়া আক্ৰমণ বিজেপি চৰকাৰক। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका
और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। ইয়াৰ পূৰ্বে RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱতেও অহংকাৰী আখ্যা দিছিল বিজেপিক। ইদ্ৰিছ কুমাৰৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে এতিয়া দেশত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ আহিছে, মোদীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে RSSক, গতিকে আমি RSSৰ কথাত কিয় গুৰুত্ব দিম? कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। नेशनल ब्यूरो NB न्यूज।